how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 2 of your class 7 English, that is the hard-working art. You know, the arts are the smallest creature on the earth. They work hard so much for their food, for their living. So let's read the beautiful story of the arts. Name the smallest insect you have seen. You know, who is the smallest? What is the smallest insect? The wisest. Wisest भी कौन है? It is the fly. Is it the fly? क्या वो fly है? No, it is not. Is it the mosquito? Is it the mosquito? क्या वो mosquito है? No, not the mosquito. Then it must be the worm. फिर तो वो worm ही होगा. No, none of these. इनमें से कोई भी नहीं है. It is the ant. What it is? The ant. The ants. The commonest. You can see ants anywhere. The smallest and the wisest insect. They are the smallest and the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue. इनकी story बहुत ज़्यादा untrue sound करती है. But people have kept ants as pets. People उनको pets की तरह रखते हैं and have watched their daily behavior closely. उनका daily behavior में closely watch करा उन्होंने. So we know a number of facts about this time. तो हमें इनके बारे में कुछ number of facts पता है हमें ants के बारे में. They are hardworking and intelligent creature. You know, they are the hardworking. वो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है और क्या है वो intelligent creature है. There are many kinds of ants. यहाँ पे बहुत सारी तरह की ants होती है. The commonest amongst them are the black or red ones. इनमें से सबसे ज़्यादा common कौन सी होती है? हमने कौन सी देखी है? You have seen the red one and the black one. We have seen them since we were children. जब हम छोटे से थे जब से हम ants को देखते आ रहे, but have not paid enough attention to them. हमने उनकी तरफ ज़्यादा attention नहीं दी. Where do they live in? कहाँ वो रहती हैं? Their comfortable homes are called nest. उनके comfortable homes को क्या कहते हैं? Nest और anthills. क्या कहते हैं? Anthills. Each has hundreds of little rooms and passages. क्या है? Little rooms होते हैं उनके anthills में और क्या होता है? Passages होते हैं. In some of these rooms, the queen ant lives. इनमें से एक रूम में कौन रहती है? The queen of the ant. Others are nurseries for the young ones called grubs. औरों को क्या कहते हैं? Grubs. Workers have their reserved quarters. Workers जो होते हैं उनके reserved quarters होते हैं. They spend most of their time searching for food. आंट इधर से उधर किस चीज़ में घूम रही है? आप हल्का सा मीठा डाल दो, वहाँ पे आंट्स आ जाती हैं ना बहुत जल्दी. Some homes are served as storehouses for this food. वो अपने food के लिए storehouses भी बनाती हैं. Soldiers have separate barracks. Soldiers की separate barracks होते हैं. No worker has ever tried to live in soldiers house. किस कोई worker soldier के house में रहना पसंद नहीं करता. No soldier has ever gone out of searching for food. कोई भी soldier food search के लिए नहीं जाता. No worker, soldier or cleaner has never harmed a grub. किसी भी grub को harm नहीं करा. So you see an ant's life is very peaceful. Ants की life क्या होती है? बहुत ज़्यादा peaceful, शांति वाली होती है. Each does its share of work intelligently and bravely and never fight with other members of the group. वो अपना सारा वर्क एक बहुत अच्छे से करती है, ब्रेवली करती है और इंटेलिजेंटली दिमाग से करती है, बहुत अच्छे से, शार्पली, विद ओपन माइंडेड, एंड कभी अपने ग्रुप में फाइट नहीं करती. द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. जो क्वीन होती है आंट्स की वो क्या होती है? मदर होती है एंटायर पॉपुलेशन की, किसी कॉलोनी की. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. कितने ईयर्स के लिए रहती है आंट्स? 15 ईयर्स के लिए. उनकी कौन रहती है? क्वीन. It has a pair of wings but bites them off water its wedding flight. वो उनको बाइट भी करती है कब? Water of its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. ये कब होती है वाली flight कब take करती है? When it's a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant. जो queen होती है वो अपना nest छोड़ देती है और बाहर जाती है मेल आंट से मिलने के लिए और
ड्रोन हाई अप इन द एयर, और बहुत ऊंची जाती है एयर में. On its return to the earth, it gets rid of its wing and then does nothing but lays egg. फिर जो उसके विंग्स होते हैं उनको, फिर वो अर्थ पे आ जाती है एंड गेट्स रिड, अपने विंग्स को छोड़ देती है एंड देन कुछ नहीं करती, फिर वो अपने एग्स को ले करती है. ईच हैच एंड ग्रब कम्स आउट. जो उसका हैच होते हैं, जो एग्स होते हैं उनको, उनमें से हैचलिंग होती है, ग्रब्स आते हैं. सोल्जर गार्ड देम. जो उनके सोल्जर्स होते हैं उनको गार्ड करते हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम. जो वर्कर्स होते हैं उनको फीड करते हैं, क्लीन करते हैं. एंड ऑल्सो केयर कैरिंग देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. किसके लिए कैरी करते हैं उनको? बाहर हवा में ले जाने के लिए, सनशाइन के लिए, एक्सरसाइज की. 2 or 3 weeks later grubs pick up cocoons. 2 या 3 दिन बाद क्या बन जाती है? जो ग्रब्स होते हैं वो क्या बन जाती है? कोकून्स बन जाती है. एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks और मोर. और फिर फूड और एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी के बिना 3 weeks से भी और ज़्यादा भी रह सकते हैं वो. देन द कोकून ब्रेक्स एंड परफेक्ट आंट अपीयर. जब वो कोकून ब्रेक होता है तो उसमें से क्या निकलती है? आंट निकलती है. नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब ये टाइम है उनको टीच करने का और ट्रेन करने का. अभी तो क्योंकि बेबी है वो. नाउ न्यू ants learn their duties from old ants as worker soldiers. जो न्यू ants होते हैं वो क्या करती है? अपनी ड्यूटीज को लर्न करती है. किससे? वर्कर्स से और सोल्जर से. बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा. बिल्डर से भी, क्लीनर से भी, और एक्स्ट्रा और भी लोगों से भी. And ant hill is a home not only for ants but also for some other creature. Ant hill जो होती है वो खाली ants के लिए होम नहीं होती, और भी क्रिएचर्स के लिए होती है. लाइक बिटल्स, लेसर ब्रीड ऑफ ants एंड द ग्रीन फ्लाई. जो ग्रीन फ्लाइज होते हैं, जो बिटल्स होते हैं, उनके लिए भी होम होती है. Why do ants want these alien creatures to live in their nest? Ants क्यों चाहते हैं वो जो एलियन क्रिएचर है उनके नेस्ट में रहे? क्यों चाहती हैं वो? For several reasons. बहुत सारे reasons हैं. Some give off smell pleasing to the ants senses. कुछ उनके सेंसेस को प्लीजेंट स्मेल देते, मतलब उन्हें खुशबू आती है उनमें से. अदर के स्वीट जूसेस, कुछ स्वीट जूसेस देते हैं ants को. एंड सम आर जस्ट पेट्स एंड प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग. कुछ उनके लिए पेट्स होते हैं, प्ले थिंग्स के लिए. जैसे हमारे लिए कोई कैट और डॉग होते हैं ना हमारे पेट्स. द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ. जो ग्रीन फ्लाई है वो क्या है? आंट्स की काउ है. द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क. आंट्स क्या लेती है? उसे हनी ड्यू लेती है, जैसे मिल्क. विद द टच ऑफ देयर एंटेनिया. जो मैं एंटेनिया से टच करके क्या लेती है वो? हनी, मतलब हनी ड्यू लेती है. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ. वो कैसे मिल्क करती है? जैसे काउ मिल्क करती है. हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज आंट्स हैव. क्या ह्यूमंस ने भी इतना लर्न करा जैसे आंट्स ने कर लिया इतना? Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. Yes, humans ने भी करा है उनसे ज़्यादा लर्न, बट उन्होंने अपनी लर्निंग को सही जगह यूज़ नहीं करा. They may still learn a few things from this tiny teacher. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care of young ones, and above all. बहुत सारी चीज़ें आप आंसर सीख सकते हो, लाइक क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन देखा उनका, वो दे वॉक इन अ सिंगल लाइन. हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, क्लीनलीनेस, केयर ऑफ, अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखना है. अबाउट अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव. और उसको जहाँ वो रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा लॉयल्टी देते हैं, मतलब उनको बेकार नहीं करते, उसको ख़राब नहीं करते, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.